Hello my dear friends, I am Professor YM Khan and this is the part 4 of your unit number 1 of subject Materials and Metallurgy. And in today's video we will study about Bravais lattice, which are the 14 types of lattice structure defined by Bravais the scientist, and what do you mean by Miller indices and how to find an index of a plane. Okay, now before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Okay, let us start. Now Bravais lattice is nothing but the various crystal structures identified by the scientist Bravais. Now Bravais defined 14 different structure which are possible in a crystal. In any crystal there is possibility of finding these 14 structures only. So there will be only 14 structures as per the Bravais theory. Now in this Bravais lattices we have seen this first row, that is your cubic type of lattice. Now a cubic type of lattice is having 90-degree angle between its sides, every side, and its every side is same in dimension. So the dimensions of its sides are same. Okay, so that's why it is called as cube. So we have seen this cube type of crystal structure. The first one is primitive type, that is your simple cubical structure, simple cubic structure. Then there is second type, body centered structure, in which a center atom is present in the body. So this is body centered cubic. And then we have seen face centered cubic, in which there is an atom present at the center of a face, every face. Okay, now this is your cubic type. Then there is tetragonal type of structure. In tetragonal structure, two sides of that particular structure are equal, whereas one side is different. So there are two sides which are equal and one side is different, but the angle between them is 90 degrees. Okay, now this tetragonal structure is having two types. First one is simple tetragonal and second one is body centered tetragonal, in which there is an atom present in the center of body. Okay, then there is orthorhombic. So orthorhombic shows four different type of structures, and that one is first one is primitive or simple. In this orthorhombic we have 90 degrees angle between the sides, but the sides are of different sides. All the sides are of different sides. A is different, B is different, and C is different. So that's why it is called as orthorhombic. Okay, now this orthorhombic is having simple orthorhombic. Then there is side centered orthorhombic, in which there is presence of center atom on the top face and bottom face. Okay, then there is body centered orthorhombic, in which there is presence of an atom in the body of the unit cell. Then there is face centered orthorhombic, which is similar to our face centered cubic structure. Okay, so there will be an atom at the center of a face, every face. Okay, so this is 4, this is 3, 7, this is 2, then 9. Then there is two more monoclinic. In monoclinic the angle alpha is not 90 degrees, but whereas angle beta and gamma is 90 degrees. So that's why it is called as monoclinic. So monoclinic is having simple monoclinic and then side centered monoclinic structure. Okay, so this is cubic, this is tetragonal, this is orthorhombic, this is monoclinic, and there is one hexagonal that we have studied already,
that is your hexagonal closed pack structure. Okay, the hexagonal structure is only one, that is primitive type, and simple hexagonal closed pack structure is there only. And then we have one trigonal structure in which the angle alpha, beta and gamma is not equal to 90 degrees. There is some different angle in alpha, beta and gamma, and that trigonal is having all the sides equal. So this one is trigonal. And then there is triclinic, simple triclinic, in which the alpha, beta and gamma angle is again not 90 degrees, but the sides are also different. Okay, so these are the 14 different types of Bravais lattice. This is just for your information. It will not be asked in any question paper, but there are 40 different ways of atoms that gets arranged in a crystal structure. Now let us see how atoms in a crystallographic planes are present. जो atoms हैं, हमने देखे कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसके कॉर्नर्स पर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है और उसके बॉडी में एक एटम प्रेजेंट रहता है. ओके, सिमिलरली हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखे तो इसके कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है हर एक कॉर्नर पर, साथ ही साथ में फेस के सेंटर पर एक एटम रहता है. हेक्सागोनल में उसके हेक्सागोन के कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है, और जो फेस है टॉप का और बॉटम का उसके ऊपर एक एक एटम रहता है, साथ ही साथ में 3 सेंटर में एटम प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो हमने ये स्ट्रक्चर देखे, बट हमको देखना है आज कि जो एटम्स है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में, मतलब 2D प्लेन में वो कैसे अरेंज होते हैं या वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं. अगर मैं इस सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का ये टॉप वाला प्लेन अगर कंसीडर करूँ, जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल टॉप प्लेन अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसके टॉप वाले प्लेन में मुझे कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं. अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कंसीडर करता हूँ, सो आई सी 4 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, देन अगेन इफ आई कंसीडर दिस वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये जो साइड है वर्टिकल वाली, ओके, ये जो वर्टिकल फेस है, सॉरी साइड बोलने के बजाय ये वर्टिकल फेस जो है, इसको अगर मैं कंसीडर करूँ एज ए प्लेन तो इसमें भी मुझे कितने एटम्स दिख रहे हैं, 4 एटम्स दिख रहे हैं. सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसा एक रेक्टेंगुलर प्लेन अगर मैं कंसीडर करूँ तो मुझे इसमें कितने एटम्स दिखते हैं. मुझे ये कॉर्नर के 4 एटम्स तो दिखते ही हैं, बट साथ ही साथ में उस प्लेन में क्या हो रहा है, ये डायगोनल तैयार हो रहा है यहाँ पर इस क्यूब का, और ये डायगोनल क्या कर रहा है, कट कर रहा है हमारे इस सेंटर वाले एटम को भी. तो यहाँ पर मुझे 4 कॉर्नर पे और प्लेन के सेंटर में मुझे एक एटम नज़र आ रहा है. सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर एक प्लेन कंसीडर करूँ इस टाइप में, ओके, सो यहाँ पर भी मुझे 4 कॉर्नर पे और सेंटर वाला एक एटम नज़र आ रहा है. सो दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग एटम्स इन अ क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन. ये हमारा तरीका है एटम्स को फाइंड करने का क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स में. एक प्लेन में कितने एटम प्रेजेंट है, कितने एटम मौजूद हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, जैसे कि ये वाला प्लेन है, इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक के प्लेन में 4 एटम टॉप कॉर्नर पे दिख रहे हैं, साथ ही साथ में जो फेस है इसके फेस के सेंटर में एक एटम मुझे नज़र आ रहा है. वही अगर मैं इसका डायगोनल अगर प्लेन लेता हूँ तो इस डायगोनल प्लेन के कॉर्नर पर 4 एटम्स मुझे नज़र आएंगे. यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर एक एटम नज़र आएगा और बॉटम वाली साइड पर एक और एटम नज़र आएगा. ऐसे 6 एटम्स मुझे इस प्लेन में नज़र आ रहे हैं. ये हेक्सागोनल प्लेन, अगर ये जो लैटरल प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, इसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसमें मुझे 6 कॉर्नर पे और एक सेंटर में एटम नज़र आ रहा है. सो लाइक दिस द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए क्रिस्टलोग्राफिक planes. Okay, the layers of atoms or planes along which the atoms are arranged are known as atomic or crystallographic planes, or it is also known as index of plane. Okay, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स. अब ये एटॉमिक प्लेन या क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन
को हमको किसी यूनिट से डिनोट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर मैंने बोला कि ये 4 एटम वाला और ये सेंटर में 1 एटम वाला प्लेन जो है, इसको मुझे एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना है, तो ये नाम हमको मिलते हैं मिलर इंडाइसेस से। सो वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज प्लेन्स, we get representation of these crystallographic planes or atomic planes by using Miller indices. Now this name Miller indices is given because of the scientist who who found this method of giving notations to the planes, and his name was Miller. That's why these are called as Miller indices. Now Miller indices क्या है? The orientation of plane in a lattice is indicated by the index of a plane. कोई प्लेन, कोई एटॉमिक या क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन क्रिस्टल में कैसे ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में, किस एंगल में मौजूद है, ये अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसे रिप्रेजेंट करता हूँ एक इंडेक्स से। ओके, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडेक्स से। मतलब प्लेन का इंडेक्स क्या बताएगा हमको कि वो प्लेन इस क्रिस्टल में कौन से ओरिएंटेशन में है। अब ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये वाला है, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। ओके, ये दिस इज़ योर वर्टिकल ओरिएंटेशन। दिस वन जो हमने लिया था, दिस वन इज ऑल्सो एन ओरिएंटेशन, दिस इज ऑल्सो ए वर्टिकल ओरिएंटेशन। ओके, सो ये कौन से ओरिएंटेशन में है, कैसे डायरेक्शन में है, किस जगह पर प्रेजेंट है, ये बताने का तरीका जो है वो मिलता है हमको मिलर इंडाइसेस से। नाउ मिलर इंडाइसेस आर नथिंग बट रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स which the plane makes with crystallographic axis। मिलर इंडाइसेस क्या है? यह है रेसिप्रोकल। किसके रेसिप्रोकल है? फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स के। जो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट जो प्लेन बनाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से। हमारे पास में 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस रहते हैं, जिसको हम रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं। इन रेफरेंस एक्सिस के साथ में जो इंटरसेप्ट है उस प्लेन का, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और वो फ्रैक्शन क्या रहता है? हमारा मिलर इंडाइसेस रहता है। हम देखेंगे, स्टडी करेंगे मिलर इंडाइसेस कैसे फाइंड आउट करना है। द मिलर सिस्टम फॉर designating the crystallographic planes and direction is universally accepted। ये universally accept की हुई टेक्निक है। and the procedure is as follows। जो procedure है to find Miller indices is here। please pay attention now because this will be asked in your question paper। ये हमारा x, y और z एक्सिस है, जिसको हम रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर नाम देंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, या मैं सिंपल बोलूँगा एक्सेस। ओके, क्रिस्टलोग्राफिक क्यों बोलना है? क्योंकि हम ये क्रिस्टल में इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नथिंग बट योर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। नाउ दिस इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेन। ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है, वर्टिकल इसमें मौजूद। ओके, ये ट्रायंगुलर प्लेन इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, इस वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, और इस जेड एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। ओके, दिस इज हैविंग सम इंक्लिनेशन, जो हमको यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखने मिल रहा है, बट इट इज हैविंग सम इंक्लिनेशन और इट इज हैविंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में उसने कुछ एंगल बनाया है। सो एंगल से हमको अभी फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। ओके, बट ये तीनों भी एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब क्या? कटिंग। ओके, नाउ जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कैसी है? सो फर्स्ट step in finding Miller indices is to find out the intercept made by the plane on 3 reference axis। ये जो 3 रेफरेंस एक्सिस है, इनको ये वाला प्लेन जहाँ कट कर रहा है, जिस पोजीशन पर कट कर रहा है, उन इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करो। जैसे ये 1 यूनिट रहेगा, या 2 यूनिट रहेगा, ये 3 यूनिट रहेगा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर आपका 10 mm, 12 mm, 14 mm, जो भी यूनिट रहेगा, इस इंटरसेप्ट को क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है। सो ये वाला इंटरसेप्ट
ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट जहाँ पर वो प्लेन इन एक्सिस को कट कर रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट. ओके, लेट अस अज्यूम दैट दीज इंटरसेप्ट्स आर P, Q, R. तो एक्स एक्सिस को वो जहाँ पर कट कर रहा है, ये 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है P. ओके, एक्स एक्सिस को P पर कट कर रहा है. सिमिलरली वाई एक्सिस को इस 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है Q. सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज इंटरसेप्टिंग y axis at Q, and similarly it is intercepting at z axis to z axis at position or at a distance r from the origin. 0 से लेके r पर वो क्या कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है. सो P, Q and your r is there. ये है हमारे इंटरसेप्ट, ये हमने फाइंड आउट किया. वी हैव अज्यूम्ड इट, ओके, फॉर रेफरेंस. Now let's convert these intercepts to fractional intercept. ये होल नंबर्स है, इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. अब इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो इंटरसेप्ट है, जैसे x का इंटरसेप्ट p है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट p है, तो इस इंटरसेप्ट को हम डिवाइड करते हैं इस एक्सिस के लेंथ से. दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सियल लेंथ. उसको उस रिस्पेक्टिव एक्सिस के लेंथ से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट दीज एक्सियल लेंथ्स आर a, मतलब ये एक्सिस की जो लेंथ है वो है a, y की जो है वो है b और z की जो है वो है c. सो a b c हमारी एक्सियल लेंथ्स है. तो हम p को डिवाइड करेंगे a से, q को डिवाइड करेंगे b से और c जो r है उसको डिवाइड करेंगे c से. सो वी शुड नो द एक्सियल लेंथ. ओके, सो हमारे फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, P डिवाइडेड बाय A, Q डिवाइडेड बाय B एंड R डिवाइडेड बाय C. इट इज सिंपल. ओके, इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दीज फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट. ये जो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट है इसको उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल लो. सो P बाय A का हो जाएगा A बाय P, दूसरा हो जाएगा B बाय Q, तीसरा हो जाएगा C बाय R. ओके, अभी आपको यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे सो दिस बिकम्स वेरी सिंपल. ओके, सो C बाय R, B बाय Q एंड A बाय P आर आवर रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स. उसके बाद क्या करना है, नाउ कन्वर्ट दीज रेसिप्रोकल्स टू द होल नंबर. अब ये हमारे फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है. इसको कन्वर्ट कैसा करेंगे, बाय यूजिंग अ कॉमन मल्टीप्लिकेशन विथ ए एलसीएम. मतलब हमको एलसीएम इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा. PQR जो है इसका एलसीएम निकलेगा, इस एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे A को, मल्टीप्लाई करेंगे B को, मल्टीप्लाई करेंगे C को. मतलब इन तीनों इंटरसेप्ट्स को हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी नंबर हमको मिलेगा उसको हम नाम देंगे H, K, L. ओके ओके, अब इंसिडेंटली फॉर अ क्यूबिक सिस्टम द लेंथ A, B एंड C इज सेम, क्योंकि ये क्यूबिकल है. क्यूबिक में क्या रहता है, हर साइड सेम रहती है. तो हर साइड अगर सेम है सो योर एक्सियल लेंथ इज ऑल्सो सेम. दैट्स वाई A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C. देयरफॉर ये जो भी है ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 बाय P, दिस विल बिकम 1 बाय Q एंड दिस विल बिकम 1 बाय R. ओके, सो ये हमारा 1 बाय P, 1 बाय Q, 1 बाय R हमको मिल गया. अब इसको हमको क्या करना है, सिंपली हमको इसको एक पैरेंथेसिस में, एक ब्रैकेट में लिखना है विदाउट एनी कॉमा. ओके, ये जो भी नंबर हमने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल के बाद जो वैल्यू मिलेंगी वो हमको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है. और होल नंबर को हमको क्या करना है, एक H, K, L ऐसा लिख के एक ब्रैकेट में रख देना है. ये रहते हैं हमारे मिलर इंडाइसेस. दिस इज नथिंग बट नोटेशन ऑफ योर मिलर इंडाइसेस. ओके, दिस इज रिटन लाइक दिस. ओके, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं H, K और L. नोट एक चीज़ करना है आपको, इफ़ द प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर प्लेन आपके ओरिजिन में से पास हो रहा है तो आपको ओरिजिन जो है वो क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, सो एज टू गेट द notation of your Miller indices. So let's find in actual a notation of
और मिलर इंडाइसेस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेन, एक प्लेन का मिलर इंडाइसेस फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास में ये क्यूब है, ओके, इस क्यूब का ये प्लेन दिख रहा है जो हाईलाइट किया है, इसका हमको क्या करना है, इंडेक्स निकालना है। अब इसका इंडेक्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो ये कैसा आता है 0 1 0, ये कैसा आया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारी प्रोसीजर क्या बोलती है, पहली चीज़ फाइंड आउट द इंटरसेप्ट। ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये फाइंड आउट करो। नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली प्लेन हियर ना, ये प्लेन सिर्फ इतना प्लेन, ये जो स्क्वायर प्लेन है ना सिर्फ इतना प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं, पूरा क्यूब नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर ओनली कंसिडरिंग वन प्लेन। सो लेट अस फाइंड आउट द इंटरसेप्ट फर्स्ट, देन कन्वर्ट करो इसको इंटरसेप्ट को फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट में बाय डिवाइडिंग विद द एक्सियल लेंथ, देन रेसिप्रोकल लो, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो और ब्रैकेट में डाल दो। तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। सो इसका इंटरसेप्ट क्या है, ये जो प्लेन है इट इज कटिंग द y एक्सिस एट 1 यूनिट, y एक्सिस को एक यूनिट पर वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वेयर एज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये जो इंटरसेप्ट हो गया x एक्सिस और z एक्सिस का वो है हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी क्या बोलता है, पैरेलल थ्योरम क्या बोलता है कि दो लाइंस, दो प्लेन्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ये कहीं पर एक इन्फिनिटी पे जाकर क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल कट नहीं कर रहे, ये कब कट करेंगे, इन्फिनिटी पे। इसके लिए हमारा जो इंटरसेप्ट है x का वो होगा इन्फिनिटी, जो इंटरसेप्ट है z का वो होगा इन्फिनिटी, और जो एक्चुअल में y को कट कर रहा है वो है पोजीशन 1। अब ये 1 पोजीशन कहाँ से मिली, विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब लेंथ। सो दिस इज योर इंटरसेप्ट, ओके, ये हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करेंगे, क्यूब है, क्यूब के लिए हमने क्या बोला है कि जो एक्सियल लेंथ है वो सेम रहता है। अभी इसका क्यूब का जो लेंथ दिया है वो 1 दिया है, यूनिटी दिया है, सो इसकी एक्सियल लेंथ भी 1 होगी। इसके लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जितने इंटरसेप्ट्स हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय 1। सो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, अगेन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1। सो दिस इज योर फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स। अब इन फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट का क्या लेना है आपको, रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय 1 एंड 1 बाय इन्फिनिटी। ओके, सो 1 बाय इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0, 1 बाय 1 इज नथिंग बट 1 एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0। सो इसको हमको होल नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो 0 1 0 ये हमको डायरेक्टली होल नंबर मिल गया। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली एक ब्रैकेट में लिख देंगे। सो दिस इज योर 0 1 0। सो 0 1 0 प्लेन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो नोटेशन है इट विल रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर प्लेन। और वही अगर ये मैं फेस वाला प्लेन लेता था, मतलब ये जो सामने दिख रहा है ना आपको एक्स एक्सिस को कट करने वाला, तो इसके लिए क्या आ जाता था उसका इंटरसेप्ट 1 0 0। उसी तरीके से ये टॉप का अगर फेस मैं लेता था जो z को कट कर रहा है, तो हमारा इंटरसेप्ट, हमारा जो मिलर इंडेक्स है वो क्या आता था 0 0 1, और इस प्लेन के लिए जो मिलर इंडेक्स आता था वो रहता था 1 0 0। सो ये है 0 1 0, दिस वन इज दिस फ्रंट सामने का जो है दिस वन इज 1 0 0, द टॉप वन इज 0 0 1, देन दिस लेफ्ट वन, ये जो दो एक्सिस को कट कर रहा है x और z को, उसके लिए है 1 0 1, देन ये वाला जो बॉटम वाला है, ओके, जो x और y एक्सिस को कट कर रहा है, z एक्सिस को नहीं कट कर रहा, सो दिस इज डिफरेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंट, द बैक वन। ओके, सो in this way we find the Miller index. Let us find some more index of some different plane. अब यहाँ पर हमको एक ट्रायंगुलर प्लेन दिख रहा है जो z एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, x एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है और y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है। Again this system is cubic, so that's why a cube is present here. Okay, इस क्यूब का जो हाइट है वो दिया है 1 यूनिट, जो प्लेन है ट्रायंगुलर प्लेन जो x पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो डिस्टेंस हमको दिया है 1/3, और जो प्लेन है जो y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस पर जो कट कर रहा है
वो डिस्टेंस हमको दिया है 2/3। ओके, सो हमको अब फाइंड आउट करना है इसका मिलर इंडेक्स। तो इंटरसेप्ट पहले हम निकालेंगे। पहला इंटरसेप्ट क्या है, x को कहाँ कट कर रहा है 1/3, y को कहाँ कट कर रहा है 2/3, z को कहाँ कट कर रहा है 1। इसको क्या करना है, फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। सो 1/3 डिवाइडेड बाय 1, 2/3 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो क्या मिलेगा मुझे 1/3, 2/3 और अगेन 1। ओके ओके, चलो ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में। सिंस दिस फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स आर नॉट इन होल, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू होल नंबर। कैसा कन्वर्ट करेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम। इसका एलसीएम हम निकालेंगे। ओके, इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। दिस इज़ नॉट 1/3, दिस इज़ 3/1, दिस इज़ 3/2 and this is 1/1. Okay, so please make that correction. Okay, so the whole number is now like 3/1 है, 3/2 है और 1/1 है। तो मैं क्या करूँगा, इसका LCM निकालूंगा। इसका LCM कितना आ रहा है, हमारा LCM आ रहा है 2। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ में। सो दिस बिकम्स 3 into 2 divided by 1, so 6, 3 into 2 is 6, 6/1. Then this is your 3/2, so this becomes 6/2, so 6/2 is nothing but 3, and this is 1/1, so multiplied by 2, so 2 multiplied by 1 is nothing but 2. Okay, so 6, 3, 2 ये होल नंबर हो गया। और इस होल नंबर को हमको क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट में रख देना है। ओके, ब्रैकेट में रखने के बाद में हमको पता चलता है ये जो नोटेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्लेन को। ओके, सिमिलरली एक प्लेन हमको लेना है जो ओरिजिन से पास होता है। ओके, अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब का ये डायगोनल प्लेन में कंसिडर कर रहा हूँ। अब ये जो डायगोनल प्लेन है, ये डायगोनल प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में इस XYZ जो एक्सिस है, इसका जो ओरिजिन है, इसको मुझे शिफ्ट करना है किसी दूसरे जगह पर। आइदर आई कैन शिफ्ट इट हियर, आई कैन शिफ्ट इट हियर, आई कैन शिफ्ट इट हियर, आई कैन शिफ्ट दिस ओरिजिन हियर। ओके, इस ओरिजिन को मुझे क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, तो मैं इसको शिफ्ट कुछ इस तरीके से करूँगा। ये जो भी एक्सिस है इसको यहाँ पर ले लिया, ओरिजिन को यहाँ से मैंने यहाँ पर लिया। ओके, नाउ सिंस आई हैव पुट द न्यू ओरिजिन हियर, ओके, दिस क्यूब इज नाउ सीन ऑन दिस साइड, इस साइड में दिख रहा है। ओके, एक्स एक्सिस को ये वाला प्लेन 1 यूनिट पर कट कर रहा है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ क्यूब। क्यूब का जो साइज है वो 1 है। तो ये एक्स एक्सिस को प्लेन जो है, ये वाला रेड कलर का प्लेन कट कर रहा है 1 यूनिट पर। z को वो पैरेलल है, इट इज़ नॉट इंटरसेप्टिंग एनीवेयर टू z। ओके, z को कहीं पर भी वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। वेर एज y को वो इंटरसेप्ट कर रहा है -1 यूनिट पर। कितने यूनिट पर, -1 यूनिट पर। -1 यूनिट पर करने की वजह क्या है, क्योंकि हमने इसका ओरिजिन शिफ्ट किया है। ओके, सो इंटरसेप्ट हमको मिल रहा है 1, -1 और इन्फिनिटी। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट में। सो 1 डिवाइडेड बाय 1, -1 डिवाइडेड बाय 1, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1। इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा। इसका रेसिप्रोकल जब मैं लूँगा तो मुझे मिलेगा 1, -1 और 0। 1/infinity इज नथिंग बट 0। ओके, सो रेसिप्रोकल मिल गया। होल नंबर है तो होल नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो 1, -1, 0 ये हमारा होल नंबर मिल गया। बट हम इसको जब पैरेंथेसिस में डालेंगे, इसको पैरेंथेसिस में डालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल नोटेशन है। जो भी माइनस वाला नंबर रहेगा, इसको आपको माइनस नहीं लिखना है, इसको आपको क्या लिखना है, बार लिखना है। सो 1, 1 बार 0 ये है इस प्लेन का करेक्ट नोटेशन। 1, 1 बार 0। ओके, और ऐसे कंडीशन में जब प्लेन हमारे ओरिजिन से पास होता है तो आपको ओरिजिन क्या करना है, शिफ्ट करना है समवेयर एल्स। ओके, so this is all about your Miller indices. So thanks for watching this video. Please stay safe, stay home, keep learning, and if you have any query, please ask it. Thank you.